Welcome students. Today we are going to discuss exercise 2.1 relation and function. So let us begin exercise 2.1. Question 1 says if x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 equal to 5 by 3 comma 1 by 3. So if these two ordered pairs are equal, find the values of x and y. So first of all, you must copy this main information x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 comma 1 by 3. Now we know that two ordered pairs are equal if their first entries are equal and their second entries are equal. So this implies x by 3 plus 1 is 5 by 3 and y minus 2 by 3 is 1 by 3. So x, you can easily work out x by 3 is 5 by 3 minus 1 and y is 2 by 3 plus 1 by 3. So we'll get 5 minus 3, 2 by 3. So x will be 2 and y is also, y is 2 by 3 plus 1 by 3, y will be 1. 5 by 3 minus 1 will be 2 by 3 or 3 LCM cancel हो जाएगा. So these ordered pair will be equal if x is 2, y equal to 2. Now you can write here reason for your reference by equality of ordered pairs. So why we have written this? This is because of equality of ordered pairs. तो फर्स्ट टर्म में MCQ ही आने हैं, तो वहाँ पे वर्किंग आप जितना फास्ट करेंगे कम से कम लिखे, दैट विल बी बेटर, बट यू मस्ट नो हाउ टू राइट द कंप्लीट सॉल्यूशन. Question number 2, if set A has 3 element and B equal to 3, 4, 5, means B में भी 3 ही element है, यहाँ में elements क्या है उसकी जरूरत नहीं है. Then find the number of elements in A cross B. तो number of elements in A is 3 and A in short we write for number of elements. Number of elements in A is 3 and B is the set 3, 4, 5. So again we can say number of element in B is, number of element B is also 3, and we have studied that number of element in A cross B will be number of elements in A into number of elements in B. So this is perfect question for MCQ. So 3 into 3 will get 9. So A cross B will have 9 elements. So A cross B will have 9 elements. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, उससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी तुरंत आ जाएगी. तो आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. तो G set is 7, 8 and H is 5, 4, 2. You can write in order also 2, 4, 5, 1 and the same thing. Find G cross H, and we know the Cartesian product of two set is set of ordered pairs in which first element will be taken from first set and second from second set. First set कौन सा होगा? जो पहले लिखा है वो नहीं, प्रोडक्ट में जो पहले आ रहा है. तो यहाँ G पहले आ रहा है तो फर्स्ट एलिमेंट G से लीजिए 7 और सेकंड H से 7, 5, फिर G का पहला एलिमेंट, H का दूसरा एलिमेंट 7, 4, देन 7, 2. Now 8, 5, 8, 4, 8 from G, 4 from H, 8, 5, 8, 4 and similarly 8, 2. So this is G cross H. Now H cross G जब लिखेंगे तो H will be first set. तो पहला
पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो H से लेना है। तो 5 7 5 8, 4 7 4 8 2 7 2 8। तो पहले 5 को लेंगे, पेयर इट विथ 7 एंड 8, 5 7 5 8। तो फिर हम 4 जो है उसको लेंगे H से और उसकी पेयरिंग करेंगे 7 और 8 के साथ, G के एलिमेंट के साथ। देन सिमिलरली 2 7 2 8, दिस इज अवर H क्रॉस G। अब 7 5 5 7 ये सब अनइक्वल होंगे, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होते हैं जब फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के और सेकंड एंट्री सेकंड के इक्वल होती है। तो H क्रॉस G और G क्रॉस H अनइक्वल होंगे। यहाँ में पूछा नहीं है, बट एमसीक्यू में कह सकते हैं कि इज G क्रॉस H इक्वल टू H क्रॉस G, विल से नो। क्वेश्चन नंबर 4, state whether each of the following statement are true or false. Statement is false, rewrite the given statement correctly. So first statement in question 4 is P is Mn and Q is Nm. Means P and Q are same, Mn लिखो Nm लिखो, एक ही बात है। तो P क्रॉस Q में 4 एलिमेंट्स होंगे। गिवन स्टेटमेंट P क्रॉस Q is equal to Mn, Nm is false। ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि यहाँ 2 एलिमेंट है, यहाँ 2 एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट आएंगे तो वैसे ही पता है। तो करेक्ट क्या होगा? करेक्ट स्टेटमेंट इज P क्रॉस Q विल बी M फ्रॉम हेयर, और पहले N के साथ फिर M के साथ, MM। ऑर्डर कैसे भी लिखो, MN MN MM लिखो या MM MN लिखो। Then N will be paired with these two, NN NM, NM NN. So this is P cross Q. So this is false. Second, A and B are non-empty sets. A cross B is non-empty set of ordered pair XY such that X belongs to A, Y belong to B. So we know that this is correct because A cross B क्या होता है, जिसमें A क्रॉस B ऐसे ऑर्डर्ड पेयर XY का सेट होता है जिसमें X A में हो, Y B में हो। तो यही हमें गिवन है, तो ये ट्रू हो गया। तो हमें यहाँ कुछ लिखना नहीं है, क्योंकि हमें रीराइट तभी करना था जब स्टेटमेंट फॉल्स है। वी हैव थर्ड पार्ट आल्सो, A इज दिस 1 2, B इज 3 4। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 क्या 5 होगा? यस, B इंटरसेक्शन 5। Intersection of any set with empty set is always empty, and therefore A cross B intersection phi means A cross phi, और phi के साथ हमने A cross B को डिफाइन किया था जब A और B नॉन एम्प्टी है, तो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर XY such that X is in A and Y is in B, but if either A or B is एम्प्टी, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में अगर कोई भी एक सेट एम्प्टी है तो क्रॉस प्रोडक्ट एम्प्टी आएगी। दिस वाज पार्ट ऑफ द डेफिनेशन। सो स्टेटमेंट इज ट्रू। सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ रीराइट करने का मीनिंग नहीं है कोई। हियर सेट ए इज गिवन -1 and 1, we have to A cross A. You can make tree diagram. A is -1 1. This is A. Now A cross A, -1. The pairing you will do with -1 and 1, and 1 की pairing also with -1 and 1. Then this will pair with -1 and 1. This one will also be paired with -1 and 1. This also with -1 and 1, and this also with -1 and 1. So you can write in 2 step, or you can write in single step using this tree diagram. -1 -1 -1 -1 -1 1 like that. So A cross A is -1 1 -1 -1। A को आप 2 बार लिख लीजिए अगर आपको दिक्कत होती है तो। -1 की A की पेयरिंग A के एलिमेंट के साथ, तो -1 की पेयरिंग पहले -1 के साथ,
फिर -1 की पेयरिंग 1 के साथ, देन 1 की पेयरिंग विद -1, 1 पेयर्ड विद 1। अब इनको फिर ए के साथ आप फिर से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ए क्रॉस ए क्रॉस ए, तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा ऑर्डर्ड पेयर की जगह, -1 -1 -1, फिर -1 -1 1, फिर -1 इसके साथ -1 1 -1, फिर -1 इसके साथ -1 1 1। नौ अब जहां पे पहले -1 लिखा है शुरू में वहां 1 लिख दीजिए, 1 -1 -1, फिर 1 -1 1 1 1 -1, then lastly 1 with this 1 1 1। आप ट्री डायग्राम से इसको एक स्टेप में भी लिख सकते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ। आशा करते हैं आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा होगा, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। क्वेश्चन नंबर 6, A क्रॉस B is given AX AY BX BY। A cross B is AX AY BX BY। तो क्रॉस प्रोडक्ट से कई बार हमें सेट बनाने को पूछे जा सकते हैं। तो A इज, अब 1 मार्कर में कोई नए क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसी को 1 मार्कर में पूछ देगा, A की 4 वैल्यू दे देगा सेट की एग्जामिनर, तो आपको करेक्ट A आइडेंटिफाई करना है। तो A जो फर्स्ट एंट्रीज होती है वो फर्स्ट सेट से आती है, तो 2 फर्स्ट एंट्री है A एंड A, तो एक ही बार लिखी जाएगी, और फर्स्ट एंट्री हमारे पास B एंड B है, तो ये भी एक बार लिखेंगे। तो सेट A ये बन गया, सेट B इज सेट ऑफ सेकेंड एंट्री X है मेरे पास 2, तो एक ही बार लिखा जाएगा सेट में, Y 2 टाइम्स, तो आप देख सकते हैं AX AY BX BY, तो A क्रॉस B यही बन रहा है। इन क्वेश्चन नंबर 7 वी आर गिवन 4 सेट्स, A 1 2, B is 1 2 3 4। ये क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल नहीं है। C is 5 6 and D is 5 6 7 8। You have to verify that A cross B intersection C is A cross B intersection A cross C। तो फर्स्ट पार्ट में let us first find B intersection C, so we can find its cross product with A। तो B intersection C nothing is common, B और C में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, 1 2 3 4 5 6 nothing is common, so its cross product with A cross B intersection C will be A cross phi, and ये phi हो जाएगा by definition। Now let us find A cross B। A cross B find करें, A cross B 1 1 1 2, फिर 1 A से 3 B से 1 3 1 4, A क्रॉस B हो गया। अभी और भी बचे 2 1 2 2 2 3 2 4, A का एलिमेंट 2, B के 1, फिर 2 यहाँ A से 2 B से, 2 A से 3 B से, 2 A से 4 B से। Now let us see A क्रॉस C, 1 A में 5 B में C में, 1 को फिर 6 के साथ पेयर करेंगे, फिर 2 5 2 6। Now you can see no pair is common, 1 1 यहाँ पे, यहाँ नहीं है, 1 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, nothing is common, so you can say A cross B intersection A cross C is phi, so we can conclude that this is also phi, this is also phi, therefore A cross B intersection C, इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कह सकते हैं, A क्रॉस B। तो ये प्रूफ नहीं है, ये वेरिफिकेशन है फॉर वन प्रॉब्लम, वैसे इन जनरल ट्रू होता है A क्रॉस C। दिस रिजल्ट इज
true in general for any ABC. Now we have to find A cross C and we have to show it is subset of B cross D. तो A cross C निकालते हैं. A cross C तो हमने निकाला ही हुआ है. A cross C तो यही हमें काम आ जाएगा. Now let us find B cross D. A cross C को आप चाहें तो रीराइट कर लें. A cross C is 1 5 1 6 2 5 2 6. Now B cross D and D में है एलिमेंट 5 6 7 8. B cross D. B cross D will be 1 5 1 6 1 7 1 8. 1 5 1 6 1 7 1 8. देन 2 के साथ भी ये चारों आ जाएंगे. 2 5 2 6 2 7 2 8. देन 3 के साथ भी 3 5 3 6 3 7 3 8. सेम वे 4 के साथ 4 1 4 2 4 4 5 4 5 4 6 4 7 4 8. ये सारे एलिमेंट आ गए. तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं 1 5 1 6 2 5 2 6 यहाँ पे आ रहे हैं. तो आई कैन से देयरफॉर A cross C is subset of B cross D. A cross C is subset of B cross D. Let A is 1 2 and B is 3 4. So A is 1 2, B is 3 4. Write A cross B, no problem. A cross B will be 1 3, 1 from A, B 3 from B, 1 4, 2 3 and 2 4. This is our A cross B. Now what we have to do, how many subsets will A cross B have? A cross B have 4 एलिमेंट 1 2 3 4, क्योंकि A में 2 है B में 2 है. तो A cross B will have 4 elements and therefore number of subsets of A cross B will be 2 की पावर 4. अगर किसी सेट में n एलिमेंट होते तो 2 की पावर n सबसेट्स होते, तो 16 सबसेट्स होंगे. अब ये कह रहा है ये 16 को लिस्ट करो. ये आगे आप रिलेशन में पढ़ेंगे. A क्रॉस B के जितने भी सबसेट है वो A और B के बीच में रिलेशन होते हैं, रिलेशन फ्रॉम A टू B. तो सबसेट्स आर, एक तो 5 हो जाएगा, फिर सिंगल एलिमेंट के 1 3, 4 ये बनेंगे 1 3 1 4 2 3 2 4. फिर आप परम्यूटेशन वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पता लग जाएगा आपको 6 बनेंगे 2 एलिमेंट के 1 3 1 4 1 3 1 4. फिर 1 3 को 2 3 के साथ लो 1 3 2 3, दो दो पेयर वाले सेट बना. फिर 1 3 2 4, तो फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड पेयर, फर्स्ट एंड फोर्थ पेयर. अब मैं सेकंड पेयर से पकड़ूंगा तो 1 4 1 3 के साथ आ चुका 1 4 2 3. वन 4 2 3 पहले नहीं आया था, ठीक है. 1 4 2 4 1 4 2 4. अब देखो 1 3
के साथ सारे आ चुके, 1 4 1 3 के साथ तो पहले से ही था, तो हमने 1 4 को 2 3 के साथ 1 4 2 4, अब 2 3 2 4 और बचा, तो ये दो दो पेयर वाले ये सबसेट होंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। फिर होंगे हमारे पास 3 पेयर लेके, तो पहले 1 को ले लो 1 3, पहले फर्स्ट 3 ले लो 1 4 1 2 3, फिर 1 3 1 4 को छोड़ दो 2 3 2 4, फिर 1 3 1 4 2 3 आ गया, 1 3 1 4 2 4, अब 1 1 3 को छोड़ दो 1 4 2 3 2 4, अब एक और आएगा, एक और बनेगा, आप चेक कर सकते हो, अभी ये बचा है 1 3 1 4 2 4, 1 3 1 4 and 2 4. Now next subset will be A cross B itself. Next subset will be A cross B itself. So we have 1 2, या तो A cross B लिख दो या इसकी वैल्यू लिख दो 1 3 1 4 2 3 2 4, तो आप गिन सकते हैं, ये 2 की पावर 4 16 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो अब ये 16 सबसेट्स कोई पूछेगा नहीं आपसे, एमसीक्यू में से घुमा फिरा के पूछ सकते हैं कि इज दिस सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एटसेट्रा। क्वेश्चन 9 यहाँ पे आपको गिवन है ए क्रॉस बी, ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3 and number of elements in B is 2, and it is given x comma 1 y comma 2 and z comma 1 are in A cross B. So I will write in mathematical language, these three pair are in A cross B. Find A and B where x y z are distinct. तो नहीं भी लिखा होता तो x y z को हम डिस्टिंक्ट ही लेते, तो x कॉमा 1 A क्रॉस B में है, तो x बिलोंग्स टू A, y z B A क्रॉस B में है, y2 सॉरी दिस इज y2, सो y बिलोंग्स टू B A एंड z सिमिलरली बिलोंग्स टू। अब 1 2 और 1 ये सेकेंड एंट्रीज हैं, तो 1 इन B 2 इन B और यहां से भी वही आएगा 1 इन B, तो देयरफॉर A में 3 एलिमेंट है ना, और 3 एलिमेंट एक्स वाई जेड है, डिस्टिंक्ट है, तो A हो गया एक्स वाई जेड एज एन ए इज 3, 3 एलिमेंट है, तो वो 3 एलिमेंट कौन से हो गए एक्स वाई जेड, और B में 2 एलिमेंट है और वो 2 एलिमेंट कौन से हो गए 1 2, तो B इज 1 2, तो B 1 2 के अलावा और क्यों नहीं होगा, क्योंकि B में 2 ही एलिमेंट है और वो 2 एलिमेंट हमें यहाँ पता है, 1 इज इन B 2 इज इन B, तो वी कुड फाइंड A एंड B। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। तो आइए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 कहता है कि A क्रॉस A में 9 एलिमेंट्स हैं, A क्रॉस A में 9 एलिमेंट्स हैं, तो उसमें से 2 एलिमेंट इसने बता रखे, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि A क्रॉस A में 9 एलिमेंट कब आ सकते हैं। दिस इंप्लाइज A नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B,
तो A क्रॉस A के नंबर ऑफ एलिमेंट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B मीन्स बोथ आर Na. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स Na इज सिंबल फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट. नंबर ऑफ एलिमेंट इन Na का स्क्वायर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A का स्क्वायर इज 9. So this will mean A, अब ये प्लस माइनस 3 में माइनस 3 नहीं आ सकता क्योंकि ये पॉजिटिव है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A is 3. नाउ 9 एलिमेंट हैं A क्रॉस A में, लेकिन उसमें से हमें 2 एलिमेंट पता लगे. तो देखते हैं क्या 2 एलिमेंट पता लगने से हम A निकाल पाएंगे. दिस बिलोंग्स टू A क्रॉस A एंड 0 1 बिलोंग्स टू A क्रॉस A. तो इससे क्या आएगा, -1 बिलोंग्स टू A, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से. अब सेकंड सेट भी तो A ही है. एंड 0 बिलोंग्स टू A, फर्स्ट एलिमेंट 0 इन फर्स्ट सेट A, सेकंड एलिमेंट 1 इन सेकंड सेट दैट इज आल्सो A. तो A के 3 एलिमेंट आ गए, -1 0 1 बिलोंग्स टू A एंड एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A आर 3 ओनली, और 3 एलिमेंट ये रहे. तो आप कह सकते हैं कि A इज -1 0 1. So we have done this exercise. There are 10 questions. तो इस एक्सरसाइज में 10 questions थे. We have done all. तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, क्या उसकी डोमेन होती है, क्या रेंज होती है. तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस में आगे इसका बड़ा यूज होता है. और क्लास 12th में कैलकुलस लगभग 50% वेटेज है होल सिलेबस की. तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है. आशा करते हैं आपको हमारा चैनल पसंद आया होगा. अगर आपको चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे. मैथ शिक्षा चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद.